Good morning students. Today we are going to start new chapter that is 36 and name is chromosomal aberration in human. Aberration means disorder. Disorder कैसे कि क्रोमोसोम के नंबर में अगर चेंजेस हो जाए, क्रोमोसोम नंबर या तो ऐड हो जाए, कोई क्रोमोसोम या डिलीट हो जाए, और क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है, जो आर्म है, वो डैमेज हो जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड क्रोमोसोमल एबरेशन. अब हम इसमें एग्जांपल्स देखेंगे इस चैप्टर में कि कौन कौन से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं. इससे पहले हम क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ जो फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं. क्रोमोसोम्स आर फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, यानी क्रोमोसोम्स जो हैं दे आर कंसिडर्ड एज फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी. जो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो फिजिकल पार्ट है, दैट इज क्रोमोसोम. They are first discovered by Hofmeister. Chromosome term was given by Voltaire, and structure of chromosome was studied by Strasburger in Tradescantia plant. In Tradescantia plant, chromosomes have hereditary particle. These hereditary particles are called as now gene, and gene term was given by Johansen. कि क्रोमोसोम जो है उन पर हेरिडिटी पार्टिकल्स होते हैं. हेरिडिटी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम. दिस हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय सटन एंड बोवेरी. इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी बिकॉज क्योंकि क्रोमोसोम के तो रिस्पॉन्सिबल मान ही रहे हैं, लेकिन क्रोमोसोम पर भी एक ऐसा जो हम कहेंगे कि पार्ट प्रेजेंट होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी. दैट हेरिडिटरी पार्टिकल आर कॉल्ड एज जीन. पहले तो इसे फैक्टर बोला. मेंडल used factor term for this hereditary particle. Now this is known as gene. Now we will see how many types of chromosome are present in living beings. There are three types of chromosome. First is viral chromosome, prokaryotic chromosome and eukaryotic chromosome. देखिए, virus is not living being or it is also not considered as non-living being. Actually, this is a connecting link between living and non-living, as you have studied in class 11th. But virus has chromosome. When it enters in human body, it take over the machinery of host. Virus has only one chromosome. It is made up of either DNA or RNA. या तो DNA होगा या क्या होगा, RNA, not including both. Plant viruses contain RNA. अब क्रोमोसोम में आरएनए क्या है? देखो, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. अब यहाँ पर वायरस में जो डीएनए के प्लेस पर आरएनए भी मिलता है एज ए जेनेटिक मटेरियल. सो वी कैन से कि वायरल क्रोमोसोम हैज़ आइदर डीएनए और आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल. प्लांट वायरस कंटेन्स आरएनए एंड अदर वायरस कंटेन्स डीएनए. लाइक कोरोना वायरस कंटेन डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल. क्लियर? तो इनमें जो वन क्रोमोसोम होता है, दैट क्रोमोसोम इज कवर्ड बाय ए प्रोटीन कोट दैट इज कॉल्ड कैप्सिड. Chromosome is covered by a protein coat that is called capsid. So this is viral chromosome. And what about prokaryotic chromosome? Prokaryotic means a cell which have not well developed nucleus, in which chromosome or DNA is not bounded with a membrane. It has a neck DNA. So prokaryotic chromosome has one chromosome. For example, bacteria. Bacteria has one chromosome. And what about eukaryotic chromosome? अब eukaryotic में आएंगे fungi, plants and animals. They have eukaryotic chromosome. Eukaryotic means chromosome are present in the nucleus.
In prokaryotic cell, chromosome are not bound with nuclear membrane. And eukaryotic में जो chromosomes हैं, they are made up of DNA plus protein. अब proteins भी two types के हैं इनमें, histone proteins and non-histone proteins. So eukaryotic chromosomes are made up of DNA as genetic material along with protein. Protein is of two types, histone protein and non-histone protein. Histone protein are basic protein and non-histone protein are mean basic क्यों? Because they are made up of basic amino acid and non-histone means non-basic. Now we will see there is special chromosome structure which is found in human being, as we have discussed in previous video, autosomes and sex chromosomes. एक बार फिर देख लेते हैं what are autosomes and sex chromosomes. हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि ह्यूमन हैज़ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मीन्स 2n is equal to 46. अब यहाँ पर आउट ऑफ 44 क्रोमोसोम्स जो हैं, द 44 क्रोमोसोम्स आर सिमिलर इन मेल एंड फीमेल, यानी मैन और वुमेन में 44 क्रोमोसोम्स के हैं, आइडेंटिकल हैं, यानी कोई डिफरेंस नहीं है. बट 2 क्रोमोसोम डिफर्स, इनमें 2 क्रोमोसोम्स क्या हैं, डिफर हैं. कैसे? इन बोथ सेक्सेस, यानी ऑटोसोम से भी डिफरेंट हैं और मेल और फीमेल में भी क्या है, डिफरेंट है. तो 44 जो सिमिलर है दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स, एंड जो 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं दे आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इनमें इन क्रोमोसोम नंबर में जो कैसे चेंजेस हो जाते हैं, तो कौन कौन से डिजीज़ या सिंड्रोम हो जाते हैं, अब वो चैप्टर हम पढ़ेंगे. और ये चैप्टर का टॉपिक ही यही है, क्रोमोसोमल एबरेशंस, कि क्रोमोसोम में स्ट्रक्चर में चेंजेस आना. तो फर्स्ट देखते हैं हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. ये जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं अगर ये ऑटोसोम में हो, ऑटोसोम में कौन सा है, 44 प्लस. देखिए ये क्रोमोसोम जो जीनोटाइप होता है फीमेल में और ये जीनोटाइप होता है नॉर्मल मेल में. ऑटोसोम्स आर 44 एंड 2 क्रोमोसोम्स आर सेक्स क्रोमोसोम. देखिए अगर ऑटोसोम में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए, यानी ये 44 की जगह 45 क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं, या फिर 46 क्रोमोसोम हो सकते हैं, या फिर इनमें कोई डिलीट भी हो सकता है, 44 की जगह क्या हो जाए, 43 क्रोमोसोम आ जाए. तो इनमें क्या होगा कि जो चेंजेस हैं वो सिमिलर ही होंगे, चाहे वो मेल चाइल्ड है चाहे फीमेल चाइल्ड है. यानी इसमें जो इनमें कोई बेसिस नहीं है कि किसी जेंडर में स्पेसिफिक फीचर्स आएंगे. नो, अगर ऑटोसोम में चेंजेस हैं तो वो सेम ही है दोनों ही जेंडर में, मेल में भी फीमेल में भी. तो दिस टाइप ऑफ एबनॉर्मेलिटीज इज कॉल्ड ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी. सपोज 44 की जगह 45 क्रोमोसोम हो गए, और ये अगर फीमेल में डेवलप होता है तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए, 45, 46, 47. अगर 47 क्रोमोसोम हो जाए तो 2 टाइप्स के सिंड्रोम हो सकते हैं, डाउन सिंड्रोम एंड एडवर्ड सिंड्रोम. ये सिंड्रोम जो नेम है ये साइंटिस्ट जो लैकडाउन ने डिस्कवर किया था, इसलिए उन्होंने अपने नेम पर ही ये इस डिज़ीज़ का नेम दे दिया डाउन सिंड्रोम, और एडवर्ड ने जो सर्च किया उसे दे दिया एडवर्ड सिंड्रोम. अब ये डाउन सिंड्रोम क्या होता है, एडवर्ड सिंड्रोम, ये भी हम देखेंगे. अगर सेक्स क्रोमोसोमल में डिफेक्ट आ जाए, जैसे 44 प्लस एक्स है, ये तो नॉर्मल हो गया, जीनोटाइप फॉर फीमेल, एंड 44 प्लस एक्स वाई फॉर मेल. 44 तो नॉर्मल है बट एक्स वाई हो जाए, या फिर 44 प्लस एक्स ही रह जाए, तो यहाँ पर अभी जेंडर बेस्ड आ गया चेंजेस. यहाँ पर कि जेनेशियल ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप नहीं होंगे, या फिर उस फीमेल में मेल करेक्टर्स होंगे. ठीक है, यहाँ पर अगर देखिए 44 प्लस एक्स वाई ऐसा मेल में भी हो सकता था. तो अगर इनमें चेंजेस आए
सेक्स क्रोमोसोम में उस एबनॉर्मेलिटीज़ को कहेंगे सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसके एग्जाम्पल्स हैं टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये जो नेम है ये साइंटिस्ट ने अपनी डिस्कवरी के बेसिस पे अपने नेम पर ही दे दिया, उनके नेम के अकॉर्डिंग ही डिजीज़ का नेम नॉमेनक्लेचर कर दिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब इसे डिटेल में देखते हैं कि व्हाट इज़ डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर एंड क्लाइनफेल्टर। ये 4 डिजीज़ हम डिस्कस करेंगे। सी, डाउन सिंड्रोम इज एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर. It is trisomic disease. Trisomic disease means addition of one chromosome. यानी 2n इज इक्वल 46 है तो यहाँ पे 2n प्लस 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 47। यानी डायप्लोइड में 1 क्रोमोसोम ऐड हो गया तो यह क्या हो गया ट्राइसोमिक, एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है दैट इज फाउंड ऑन 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम नंबर। ये आपको लर्न करना ही है कि 21st क्रोमोसोम पर ही होना चाहिए। यू हैव टू रिमेंबर। एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पर्सन हैविंग डाउन सिंड्रोम? देखिए राउंडेड फेस होगा, ब्रॉड फॉरहेड, नोज इज फ्लैटेंड और परमानेंटली ओपन माउथ, और सलाइवा जो है वो सीक्रेट होता रहेगा। जो लोअर लिप है इट इज़ प्रोजेक्टेड आउट, बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ होगा लिप। नेक शॉर्ट होगी, पर्सन इज मेंटली रिटार्डेड, जेनिशियल ऑर्गन्स आर नॉट डेवलप्ड, और साथ साथ जो ऑर्गन्स हैं हार्ट, किडनी, लीवर ये भी वीक होंगे। अब इसका कॉज क्या है? व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम? देखिए हम जानते हैं कि इट इज़ ट्राइसोमिक डिजीज़, प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21। तो यहाँ पे ये जो ऑटोसोमल डिजीज़ है यानी ये जो गैमेट फॉर्मेशन हुआ होगा जिस टाइम पर इनके पेरेंट्स में, तो ये डिफेक्ट तभी हुआ। हमें पता है कि इसमें ये जो पर्सन है इसका जीनोटाइप क्या होगा 45 प्लस, या तो XX हुआ तो फीमेल होगी ये, और 45 प्लस XY होगा तो ये क्या होगा मेल में होगा डाउन सिंड्रोम, क्योंकि ये ही ऑटोसोमल जो है क्रोमोसोम ही एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे 45 कैसे हुआ होगा कि 44 मान लीजिए प्लस X, ये तो है फीमेल गैमेट यानी ओवम, व्हेन इट फ्यूजेस विद गैमेट में होता है 22 प्लस एक्स, ठीक है 22 प्लस एक्स गैमेट फ्यूजेस विद 23 प्लस एक्स क्रोमोसोम, यानी ये जो स्पर्म है इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, ऑटोसोम क्या आ गया एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे 23 प्लस 22 क्या हो गया 45, और ये गैमेट जो है इसमें एक्स फ्यूज़ हुआ तो ये बन गया 45 प्लस एक्स, यानी ये जो फीमेल चाइल्ड होगी इसमें ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा, यानी इसमें स्पर्म जो है वो डिफेक्टिव है और ओवम नॉर्मल है। और अगर हम दूसरा केस देखें, स्पर्म इज हैविंग वाई, देन मेल चाइल्ड विल बी हैविंग डाउन सिंड्रोम 45 प्लस XY। और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा स्पर्म ही डिफेक्टिव हो, मान लीजिए स्पर्म नॉर्मल है 22 प्लस एक्स, बट फीमेल जो है ओवम यानी फीमेल गैमेट है ओवम वो एबनॉर्मल है। फीमेल जो ओवम है इट इज़ हैविंग 23 ऑटोसोम, तो 23 प्लस 22 तब ये होगा, यानी इसमें से ना नॉर्मल स्पर्म इज फ्यूज्ड विद डिफेक्टिव ओवम और नॉर्मल ओवम इज फ्यूज्ड विद डिफेक्टिव स्पर्म, तो इस केस में ये डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, यानी दिस पर्सन इज हैविंग 47 क्रोमोसोम। अब सेकंड हम देखते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। देखिए एडवर्ड सिंड्रोम भी सिमिलर है। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या डिफरेंस है कि जो उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है वो 21 की जगह 18 पर होता है, यानी 18 नंबर का जो क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा है। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये पेयर में होते हैं, यानी ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम और आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऑन 18th नंबर ऑफ क्रोमोसोम।
तो इसे एडवर्ड ने सर्च किया तो उसे बोल दिया एडवर्ड सिंड्रोम। और उसमें भी मेंटली रिटार्डेड होता है जो चाइल्ड है, जेनिशियल ऑर्गन्स आर नॉट डेवलप्ड, वीक होता है हार्ट ऑर्गन्स जो हैं किडनी लिवर ये सब वीक होते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इट इज़ ऑल्सो ट्रायसोमिक डिजीज बिकॉज it is also caused by addition of वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। बट यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का वो सेक्स क्रोमोसोम्स में हो रहा है, ना इधर ऑटोसोम्स में। तो जीनोटाइप क्या होगा? देखिए जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इट अकर्स इन मेल, तो इसमें जीनोटाइप है 44 तो नॉर्मल है ऑटोसोम। और मेल में क्या होता है एक्स वाई तो होता है नॉर्मल, बट इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो पर्सन है उसका जीनोटाइप होगा 44 प्लस एक्स एक्स वाई, यानी वन एक्स्ट्रा आ गया एक्स क्रोमोसोम। तो वन एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम है दैट इज कॉल्ड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब इसका कॉज क्या है? देखिए इट इज़ कॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, यानी जो एग है, एग हैविंग एक्स एक्स क्रोमोसोम। मान लीजिए कि एग जो था, ओवम जो है उसमें 22 प्लस एक्स होने थे गैमेट जो क्रोमोसोम नंबर है, बट उसमें हुआ 22 प्लस एक्स एक्स, यानी एग इज हैविंग एक्स एक्स क्रोमोसोम, इट इज़ फर्टिलाइज विद नॉर्मल स्पर्म 22 प्लस वाई बिकॉज इट अकर्स इन मेल। तो यहाँ पर नॉर्मल तो क्या है स्पर्म है, और फीमेल गैमेट क्या है एबनॉर्मल। तो उस केस में यहाँ पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। सपोज ओवम तो है नॉर्मल 22 प्लस एक्स, यानी ओवम गैमेट जो है फीमेल गैमेट दैट इज हैविंग नॉर्मल जीनोटाइप 22 प्लस एक्स, बट फीमेल जो मेल गैमेट है it is defective and sperm is defective sperm when fused with ovum, तब भी ये क्या होगा जीनोटाइप फॉर्म होगा। और 44 प्लस एक्स एक्स वाई हुआ तो वो क्या हो गया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो पर्सन जो है जिसमें ये 44 प्लस एक्स एक्स वाई टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए 47, यानी ट्राइसोमिक डिजीज। सिम्टम्स क्या होंगे? IQ लेवल नॉर्मल होगा बिकॉज ऑटोसोम्स आर 44, बट पर्सन जो होगा स्टेराइल होगा मेल विथ अंडर डेवलप्ड जेनिशियल ऑर्गन्स, की उसके टेस्टिस जो हैं वो डेवलप नहीं होंगे। लैग्स जो है वो लॉन्ग है। और जो उस पर्सन में फेमिनाइन करेक्टर्स हैं, देखिए फेमिनाइन करेक्टर्स क्यों डेवलप हो गए हैं? बिकॉज ही इज़ हैविंग 2x फीचर, और एक्स किसको कंट्रोल करता है? फीमेल करेक्टर्स को। तो उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, कई बार क्या होता है कि अगर ये 44 प्लस एक्स एक्स वाई ये भी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ही है, यानी 47 48 49 तक क्रोमोसोम्स हो सकते हैं किसी मेल में, तो वो सब को क्या कंसिडर किया है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ही। तो उस पर्सन में मेमोरी ग्लैंड्स भी डेवलप होने लग जाती है, और इस डिजीज़ को कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया। और IQ लेवल क्या है नॉर्मल है। तो ये तो था एक मेल में एक डिसऑर्डर, वो भी सेक्स क्रोमोसोम। अब देखते हैं हम फीमेल में। जब जहाँ पर मेल फीमेल एक स्पेसिफिक सिंड्रोम हो गया तो स्टूडेंट याद रखिए वो हमेशा सेक्स क्रोमोसोमल ही होगा। ठीक है, अगर ऑटोसोम में है तो दोनों में ही हो सकता है। Yes, there is one another sex chromosomal disorder that is Turner syndrome. देखिए this is sex chromosomal disorder. It is found in females and it is monosomic disease. Monosomic means loss of one chromosome, यानी 2n इक्वल्स टू 46 है, लेकिन इसमें यहाँ पर क्या है 2n माइनस वन करके यहाँ पे क्या आ गया 45, यानी 45 क्रोमोसोम्स हैं इसमें, वन क्रोमोसोम क्या है ये डिलीट हो गया। तो 44 प्लस एक्स नोट, ये एक्स नोट है कि 44 प्लस एक्स, यानी यही क्रोमोसोम ही होता है, यानी सिंगल एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन फीमेल। तो वो जो फीमेल है वो कैसी होगी स्टेराइल है,
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप नहीं है, यूट्रस इज रिड्यूस, नॉट एबल टू ओव्यूलेशन एंड नॉट मेंस्ट्रुएशन, नेक स्किन इज लूज, नॉर्मल आईक्यू लेवल, और जो हम कहेंगे कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स हैं दे आर नॉट डेवलप्ड। तो यहाँ पर ये जो फीमेल है इसमें ये हुआ है 44+X नोट। अब इसका कॉज क्या है? ठीक है, कॉज जो है कि जब फ्यूज़न जो एग है विच हैविंग एक्स क्रोमोसोम विथ स्पर्म हैविंग नो क्रोमोसोम, यानी कोई एक्स या वाई कोई क्रोमोसोम नहीं होगा, यानी एग जो है उसमें क्रोमोसोम है 22+X, बट जो स्पर्म है उसमें क्रोमोसोम है ओनली 22+0, नो क्रोमोसोम, यानी कोई भी उस गैमेट में कोई भी क्रोमोसोम नहीं है। तब क्या होगा? ये पॉसिबल है। अगर हम इसका वाइस वर्सा देखें कि एग हैविंग नो क्रोमोसोम 22+0 एंड स्पर्म इज हैविंग एक्स क्रोमोसोम, तब भी ये कंडीशन अपीयर हो रही है। ठीक है, तो फ्यूज़न ऑफ एग हैविंग एक्स क्रोमोसोम विद स्पर्म हैविंग नो क्रोमोसोम, तभी कंडीशन है। एग हैविंग नो क्रोमोसोम विद स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम, तभी कंडीशन पॉसिबल है। तो आपको ये जीनोटाइप याद रखना है। 44+X नोट, इट इज़ फाउंड इन फीमेल, फीमेल विल बी स्टेराइल, सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट डेवलप्ड, यूट्रस इज रिड्यूस्ड, जो इसकी नेक स्किन होगी उस फीमेल की वो कैसी होगी? लूज होगी, और आईक्यू लेवल नॉर्मल है बिकॉज ऑफ 44 क्रोमोसोम्स तो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये हमने इम्पोर्टेंट सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़े, टर्नर्स, क्लाइनफेल्टर, और ऑटोसोमल डिसऑर्डर पढ़े, डाउन एंड एडवर्ड। इनमें से ये डाउन, टर्नर और क्लाइनफेल्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, डोंट स्किप दैट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।